We all have free will, don't we? And if we have free will, then we have the freedom to decide what we want and what we don't want. But when it comes to the freedom to decide the correct essay topic for you, what is correct for you might not be correct for me. And therefore, this brings us to a very important question, to the $1,000,000 question: how to choose an essay topic, utilizing your freedom judiciously, responsibly. Before I proceed ahead, आपको बताना चाहता हूं that Friday 10th of July 12 o'clock we have a free of cost workshop. इसको register करने के लिए you can please visit the Sleepy Classes website, and this is going to be offline come online. This workshop, if you want to come offline, please come offline. Otherwise, we are also conducting this workshop online via Zoom link. Please do register for this free of cost workshop on the website of Sleepy Classes. Now, what is the agenda of the session? Why the topic choice matters more than you think. Number two, there are 4 types of essay topics. What all 4 types of essay topics I'm talking about, we'll understand them. Then there's a 5-minute decision making protocol. See, you have 180 minutes to write 2 essays, which means that you have roughly around 90 minutes to write 1 essay. And you cannot spend half an hour to decide which topic you want to write the essay, right? Fair enough. And then lastly, what the examiner wants and what the examiner does not want. So these are a couple of things. These are 4 to 5 things which we would be discussing in today's session. Now, why this decision matters? देखो, 2 contrasting stats हैं. 5 seconds, how long most aspirants spend on topic selection. And 20 minutes, this is the time examiner spends reading the result of that decision. ट्रस्ट मी, एक एसे की कॉपी को एग्जामिनर 20 से 25 मिनट में पढ़ देता है. तो आपका 5 सेकंड का डिसीजन तय किया जाता है ये 20 मिनट्स के रीडिंग सेशन में. So that depends that how smartly you have written and how well the examiner has received your quote unquote smartness. देखो, यहाँ पे 3 इनसाइट्स की बात आती है. इनसाइट नंबर 1 ये है कि ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं है. टॉपिक चॉइस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है. इसके कॉन्सिक्वेंसेस आपके मार्क्स पे रिफ्लेक्ट करते हैं. सो दिस इज नॉट अ फॉर्मेलिटी. Examiner is not going to reward that, oh, you have taken a very difficult topic or that you have taken a very easy topic. ऐसा कुछ नहीं है. All right. They will reward the direction, not the effort. They will reward the direction in which your effort is oriented. Number 2, familiarity is not equal to fit. Knowing you know a lot about a particular subject. You know a lot about a particular topic. But is that suiting your requirements? Is that suiting the requirement of the examiner? Not necessarily. The question is whether specific framing of this essay is that matching your thinking style and preparation depth or not. That is very important. Insight number 3, the real cost. A wrong topic choice can cost 40 to 60 marks. Not because you wrote it very badly, but because you wrote in the wrong direction entirely. All right. Then there are 4 types of essays. Now, one by one, let's talk about them. Type 1 is the metaphor or proverb type essay. यानी कि यहां पे फॉर एग्जाम्पल, द वुंड दैट इज नॉट नेम्ड कैन नॉट बी हील्ड, और आयरन शार्पन्स आयरन, ये एक मेटाफर है, प्रोवर्ब है. हम इसको हिंदी में मुहावरा कहते हैं. अब ये मेटाफर प्रोवर्ब बेस्ड ऐसे टॉपिक है. हाउ टू अप्रोच? यू डीकोड द मेटाफर, you extract the philosophical claim from this proverb or the metaphor and then argue across multiple dimensions. Simple as that. Strength, देखिए, अंडरस्टैंड वन थिंग, यहां पे बात वजन की आती है, एनॉर्मस लैटिट्यूड की आती है. सो दिस कैन गो एनीवेयर एज पर द ह्यूमन एक्सपीरियंस. ट्रैप यहां पे क्या है? एस्पिरेंट्स हु डू नॉट एंकर टू अ सर्टेन आर्ग्यूमेंट. आपको ना एक प्रोवर्बियल या मेटाफोरिकल टॉपिक को ना किसी सेंट्रल आर्ग्यूमेंट के अराउंड एंकर करना पड़ता है. एंकर करना पड़ता है. अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो आप भटकते रहोगे, वॉन्डर करते रहोगे. ऑलराइट. Now the wound that is not named cannot be healed, but the wound exists, na? There is a wound which exists. You cannot name that wound, but okay, the wound you cannot name cannot be healed, but the wound exists. So you have to identify the core tension of this topic, and once you identify the core tension, then you have to build up an argument जो कि आपका central argument रहेगा इस topic से pertinent, और उस central argument के around हम multiple dimensions बनाएंगे. You cannot change your stand overnight. देन पैराडॉक्स या टेंशन की बात आती है. पीसफुल रेवोल्यूशन इम्पॉसिबल मेक्स वायलेंट रेवोल्यूशन इनएविटेबल. पीसफुल रेवोल्यूशन इम्पॉसिबल मेक्स वायलेंट रेवोल्यूशन इनएविटेबल. यहां पे पैराडॉक्स आ रहा है टॉपिक के अंदर ही. यहां पे आपको पैराडॉक्स दिखाई दे रहा है. अब हाउ टू अप्रोच? यहां पे आपको दोनों ही क्लेम्स को इस टेंशन में आइडेंटिफाई करने हैं. एंड यू डोंट हैव टू टेक वन साइड इन इट. डू नॉट कोलैप्स इनटू वन साइड. यहां पे आपका स्ट्रेंथ क्या रहेगा? मैच्योर थिंकिंग, forces nuanced,
अंडरस्टैंड वन थिंग, एग्जामिनर्स रिस्पॉन्ड करेंगे उन एसेस को जो कि कंप्लेक्सिटी को, इस कंप्लेक्सिटी ऑफ द टॉपिक को लगभग 1000 से 1200 वर्ड के बीच में होल्ड कर पाएंगे। एंड व्हाट इज द बिगेस्ट ट्रैप कि आप इसको एक जीएस स्टाइल आंसर के फॉर्म में, एक डिबेट के फॉर्म में आप इसको लिखना शुरू कर दें। टाइप 3 स्टेटमेंट या प्रोपोजिशन टाइप जो टॉपिक्स होते हैं, टेक्नोलॉजी इज द न्यू ज्योग्राफी ऑफ पावर और डेमोक्रेसी इज द कन्वर्सेशन नॉट अ कंक्लूजन। ये स्टेटमेंट है, प्रोपोजिशन है, टेक्नोलॉजी इज द न्यू ज्योग्राफी ऑफ पावर या डेमोक्रेसी इज अ कन्वर्सेशन, इट इज नॉट अ कंक्लूजन, हाउ टू अप्रोच, टेक अ क्लियर कट पोजिशन, define that, validate that position and account for counter arguments. Strength, यहां पे clarity of direction की बात आती है, you always know what you are arguing. Alright, trap, जितना easy दिखाई देता है कि democracy is a conversation not a conclusion, इतना easy है नहीं है. Alright, so therefore don't fall into this trap. Then process या journey based metaphors. Rivers do not drink their own water. टॉपिक है, या द ट्री दैट बेयर्स फ्रूट बाउज लो, जैसे ये टॉपिक है, हाउ टू अप्रोच, एक्सप्लोर अ रिलेशनशिप इंडिविजुअल और सोसाइटी के बीच में, पावर एंड ह्यूमिलिटी के बीच में, सैक्रिफाइस एंड रिवॉर्ड के बीच में, स्ट्रेंथ, अलाउ नैरेटिव एंड एग्जाम्पल रिच राइटिंग। ट्रैप यहां पे क्या है, स्टेइंग टू लिटरल विद द मेटाफोर एंड लूजिंग द ह्यूमन लेयर, ये आपके लिए सबसे बड़ा ट्रैप है। तो अंडरस्टैंड वन थिंग, जो आपका प्रोसेस या जर्नी बेस्ड मेटाफोर है ना, यहां पे नेचुरली आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप एक नैरेटिव बेस्ड राइटिंग कर सकते हो। वैसे तो आई ऑलवेज इंकरेज कि आपके एसे में आपने नैरेटिव और आर्ग्यूमेंट को अच्छा वीव करा हुआ है, अच्छा बिल्ड करा हुआ है, बट प्रोसेस या जर्नी बेस्ड मेटाफर्स जो होते हैं ना, वो आपको एबिलिटी देते हैं कि आप इसको ऑलरेडी बहुत ब्यूटीफुली नरेट कर सकते हो, वीव कर सकते हो अपने नरेशन को। And then you also have to explore the relationship between two forces, individual society, these are two forces, power and humility, again these are two vectors, sacrifice and reward, again these are two attributes, etc. Now 5-minute decision protocol, opening line, most aspirants they choose by the gut feeling, alright, ये एक structured protocol है। देखो यहाँ पे ना exactly 5 मिनट लगेंगे आपको, 5 मिनट एक ऐसा outcome produce करेगा। Rather than you spend 30 seconds choosing the topic, I would say spend 5 minutes choosing the topic from section A and from section B. Step 1 क्या है, 2 मिनट लगेंगे, आपने सारे के सारे 8 के 8 टॉपिक्स रीड करें, 2 मिनट लगेंगे आपको टॉपिक्स रीड करने में। Do not reject anything on the first reading. Let the full menu settle in your mind before the evaluation begins. आप किसी रेस्टोरेंट में आए हो, पूरा मेन्यू पढ़ रहे हो ना, you don't decide what you eat by reading the first dish on the menu. You might not want to sit in the restaurant, but over here we want to sit in the restaurant, but we don't decide by reading the first thing on the menu that this is what we're going to have. Maybe what you're going to have or maybe what you want to eat might be on the last page of the menu. So you have to explore the menu. So topics जो कि दिखाई देते हैं बहुत intimidating, they might give you a lot of clarity when you have a second read of the 8 topics. Then identify the type of each topic. Quickly classify करो, जर्नी बेस्ड है, प्रोसेस बेस्ड है, पैराडॉक्सिकल है, मेटाफर है, एटसेट्रा। रैपिड सॉर्टिंग, नॉट डीप एनालिसिस, रैपिडली सॉर्ट करना है। एंड यू कैन मेक अ कोड। आपको यहाँ पे मैंने 4 टाइप ऑफ एसेस बताए हैं। तो टाइप 1 मेटाफर प्रोवर्ब कैन बी एम, राइट, देन पैराडॉक्स टेंशन कैन बी पी, राइट, देन स्टेटमेंट प्रोपोजिशन कैन बी एस, एंड देन प्रोसेस जर्नी मेटाफर कैन बी जे। तो यू कैन आइडेंटिफाई बेस्ड अपॉन दीज सिंबल्स, ठीक है, ओके। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, आपने आइडेंटिफाई कर लिया, देन स्टेप 3 द 3 क्वेश्चन टेस्ट। यहां पे 2 मिनट आते हैं, 3 क्वेश्चंस आते हैं टू एवरी टॉपिक यू आर सीरियसली कंसिडरिंग, ऑलराइट। ये इसकी डिटेल आपको नेक्स्ट स्लाइड पे मिलेगी। दिस इज द हार्ट ऑफ द प्रोटोकॉल, जो स्ट्रक्चर्ड प्रोटोकॉल है 5 मिनट का। अगर जो टॉपिक आप चूज करने वाले ना, अगर वो टॉपिक तीनों क्वेश्चन ना आंसर कर पाए, यानी कि एक भी क्वेश्चन आंसर ना कर पाए, देन उस टॉपिक को मत चूज करो, एलिमिनेट दैट। नाउ द गट चेक, बिटवीन सर्वाइविंग टॉपिक्स चूज द वन यू जेन्युइनली वांट टू राइट, नॉट द सेफर वन, नॉट द मोर इंप्रेसिव वन। ये मत सोचना कि जो ज्यादा इंप्रेसिव टॉपिक है वो कम बच्चे लिखेंगे तो उस पर लिख लूं, मेरे को मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसे मत सोचना। इंटेलेक्चुअल एंगेज, जो आपकी इंटेलेक्चुअल एंगेजमेंट है, दैट विल ऑब्वियसली प्रोड्यूस अ बेटर एसे रादर देन यू आर चूजिंग अ फैंसी टॉपिक। 5 minutes, once you choose, then there is no looking back. वो 2 टॉपिक्स चूज कर लिए, stick to those 2 topics. Now the 3 question test. Now apply this to every topic जो आप consciously चूज करना चाह रहे हैं। अगर टॉपिक फेल करता है any one of these questions, then eliminate it, no matter how familiar the subject might feel to you. Question 1. Can I state the central argument in 1 sentence? क्या मैं कर पा रहा हूं? क्यों मैटर करता है? अगर आप नहीं कर पा रहे, अगर आप समराइज नहीं कर पा रहे अपनी पोजीशन को एक सेंटेंस में, तो आप टॉपिक को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं।
A topic you can argue but cannot summarize is a topic you don't have a handle on. Pass it on. I will argue that technological progress without accompanying moral imagination produces not freedom but new forms of domination. That's a pass. अगर आप ये कर पा रहे हैं आइडेंटिफाई तो यानी कि टॉपिक चूज कर लीजिए. फेल यानी कि आई फिगर आउट में आर्ग्यूमेंट जैसे मैं लिखूंगा मत करना. अगर आपको अपना सेंट्रल आर्ग्यूमेंट ऐसे लिखने से पहले आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो गलती कर रहे हैं. Then don't pick up this topic because there is a very very high probability that you will end up bhatko fine, wandering without any logic. Then question number 2, can I name at least 4 to 5 distinct dimensions to explore? Just name them, you don't have to write them. देखो 1000 से 1200 वर्ड का ऐसे है तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है तो आपको डिफरेंट एंगल चाहिए. आपके पास कुछ एग्जाम्पल या एनेक्डोट्स हैं हिस्टोरिकल डायमेंशन में, कंटेम्प्रेरी डायमेंशन में, लीगल डायमेंशन में, फिलोसफिकल डायमेंशन में, जेंडर डायमेंशन में एक्सेट्रा. नहीं है तो फिर मत करो, वो टॉपिक मत चूज करो. यू कैन चूज दिस टॉपिक, यस इट्स अ पास व्हेन you have historical root, you have contemporary relevance, you have global lens, structural dimension, etc. Fail यानी कि I can write about how important this is and give some examples. No, till the time you don't have concrete dimensions in your mind, do not attempt this topic. There's no point. Third question, can I name at least 3 specific examples, thinkers or data points? क्यों मैटर करता है? Difference between a good essay and a great essay is being specific. Vague essays वो क्या कहते हैं? A great thinker once said. ग्रेट एसेस वो बताते हैं वो ग्रेट थिंकर का नाम क्या है. अंबेडकर है, मंडेला है, मलाला यूसुफजई है, हाना आरेंट है, कौन है? तो एटलीस्ट वन हिस्टोरिकल एंकर, वन इंडियन एंकर, वन ग्लोबल और थिंकर एंकर, ये मिनिमम है. क्या आपके पास माइंड में है कोई वन हिस्टोरिकल एंकर हो, थिंकर हो, इंडियन एंकर हो? अगर है तो पास ऑन. आई विल गिव एग्जांपल्स ऑफ वेरियस कंट्रीज एंड सम फिलोसोफर्स, रैंडम फिलोसोफर्स. नो, दैट इज नॉट अ गुड डिसीजन देन टू गो अहेड विद दिस टॉपिक. इट्स नॉट अ गुड डिसीजन. व्हाट डज द एग्जामिनर वांट टू सी? बात को समझो. एग्जामिनर देखना चाह रहा है क्लियर कट सेंट्रल आर्ग्यूमेंट, जो क्लियर कट सेंट्रल आर्ग्यूमेंट पे आपका ऐसे रिटर्न बैक कर सकता है. नॉट अ लिस्ट ऑफ पॉइंट्स जो कि आप जीएस के आंसर में लिखते हो. एविडेंस विच यू कैन होल्ड ऑन इन अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड मैनर. देखो यहां पे कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व है बिकॉज एक टॉपिक है, वो टॉपिक अपने आप में कॉम्प्लेक्सिटी दे रहा है, लेकिन आपने उसमें उसके काउंटर आर्ग्यूमेंट्स देने हैं, आपने दोनों पहलू देखने हैं, आपने चीजों को एक रीजन तरीके से बताना है. सो विच मीन्स कि यहां पे आपको वो कॉम्प्लेक्सिटी को 1000 से 1200 वर्ड्स में होल्ड करना है. स्पेसिफिसिटी, रियल एग्जांपल्स, रियल थिंकर्स, रियल हिस्टोरिकल मोमेंट्स, नॉट वेग रेफरेंसेस. स्पेसिफिक होना बहुत जरूरी है. डू नॉट ट्राई टू पैराफ्रेज अ थिंकर, गिव द नेम ऑफ द थिंकर और ईदर डोंट से एनी कोटेशन और डोंट से एनीथिंग अबाउट दैट पर्सन. डोंट ट्राई टू बी वेग. मूवमेंट, द essay should feel like it is going somewhere. It is deepening as it is progressing. The examiner should have the interest and the curiosity as he or she is reading your essay further and further. And a genuine voice. Confidence without any arrogance. You should have nuances without trying to evade that nuances. What is that with the examiner? What the examiner is not looking for. Demonstration of how many things. Quantity नहीं देखना examiner के quantity कितनी आपको आती है. वहां पे जीएस के पेपर्स हैं क्वांटिटी के लिए, क्वांटिटी ऑफ पॉइंट्स के लिए. 20 क्वेश्चन 3 आवर्स, दैट इज अ डिफरेंट बॉल गेम. बैलेंसिंग फॉर इट्स ओन सेक. यू ट्राइंग टू जस्ट vaguely justify the topic and trying to balance the essay by adding some random points here and there. Don't do that. Flowery language, long sentences, trying to add, some Shashi Tharurism or trying to add some, very fancy words will not work. And a conclusion which is only summarizing what you have already written is a very poor conclusion. Is a very, very poor conclusion. A GS answer with a quote pasted at the top, don't do that. I mean, this is very artificial decoration that will not really help. Now, जब आपको लगता है कि कोई भी टॉपिक आपको सही नहीं लग रहा, मान लो कि आप यहां पे एलिमिनेट कैसे करोगे टॉपिक के बीच में. लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल. देखो आपने टॉपिक चूज किया जहां पे आपके एग्जांपल ज्यादा स्पेसिफिक है, ज्यादा वेरिड है. जेनेरिक एसेज जो है ऑन गुड टॉपिक्स, दे ऑलवेज लूज टू स्पेसिफिक एसेज ऑन एवरेज टॉपिक. अब एसिमेट्री रूल क्या कहता है कि अगर सेक्शन ए में एक स्ट्रॉन्ग टॉपिक है और सेक्शन बी में कुछ स्ट्रॉन्ग टॉपिक नहीं है, गो विद सेक्शन ए. नेवर चूज अ टॉपिक आउट ऑफ सेक्शन लॉयल्टी. 60-40 रूल. अगर आपको लगता है, अगर आप 60% कॉन्फिडेंट है अबाउट वन टॉपिक एंड 40% अबाउट अनदर, चूज द 60% वन. डू नॉट वेट के बिकॉज जब तक 90% कॉन्फिडेंस नहीं आता तब तक मैं चूज नहीं करूंगा, वो कभी भी नहीं आने वाला. एंड एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस ऑफ द 2 टॉपिक्स यू वुड राइट द वीकेस्ट एसे ऑन. एंड देन अगेन अप्लाई द 3 क्वेश्चन टेस्ट जो आपको मैंने बताया था. आपके पास सेक्शन ए में 4 टॉपिक्स हैं, सेक्शन बी में 4 टॉपिक्स हैं.
आपको 2 टॉपिक्स हमेशा लगेंगे, 2 में से एक स्ट्रांग लगेगा, एक वीक लगेगा, और जो 2 टॉपिक्स होंगे बिल्कुल वीक लगेंगे। सिमिलरली सेक्शन बी में जो दो टॉपिक्स हैं जो कि आपको लगता है कि ये सबसे वीकेस्ट ऐसे आपको इन टॉपिक्स में जाएगा, उनको तो एलिमिनेट कर दिया। तभी करके कह रहा हूं ना, 30 सेकंड्स का टाइम नहीं देना, हमने 5 to 7 मिनट्स का टाइम देना है टॉपिक सिलेक्शन में। इसको टाइम लगेगा, so you have to be sure of what topics you don't want to write the essay on, so that you don't have a regret later on. See, I might write an essay on that topic जो कि आपने छोड़ा, जो कि आपको वीक लग रहा था, but that is me. You cannot take the responsibility and the headache of 14,000 people कि वो कौन से टॉपिक पे essay लिखेंगे. They will be your strengths and they will be your weaknesses. Similarly for me. So you have to be very open about it. All right. So friends, once again I want to give you this information that ये तो चलो फ्री ऑफ कॉस्ट और ये जो वीडियोस हैं YouTube पे इनिशिएटिव्स हमारे आते रहेंगे, बट अगेन स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस चाहिए, मेंटरशिप चाहिए, विल वी हैव आवर प्रोग्राम्स योद्धा एंड सूरमा. Yodha is a program for the foundation batch for 2027 students, only available at the price of 4,000. जिस पे भी आपको डिस्काउंट मिलेगा. There is a joining discount once you call on the toll free number 180089030343. Now ये जो योद्धा प्रोग्राम है इसमें सिर्फ कंटेंट है. सूरमा में कंटेंट प्लस टेस्ट सीरीज प्लस मेंटरशिप तीनों है. 1-on-1 मेंटरशिप है, लाइव वीडियोस है यहाँ पे सारे के सारे. सूरमा में आपको लाइव वीडियोस है, योद्धा में रिकॉर्डेड वीडियोस है. और अगर मैं एसए क्रैश की बात करूं, ऑफ कोर्स एसए का पेपर आपका पहला मेंस का पेपर है. सो कंटेंट प्लस टेस्ट सीरीज प्लस मेंटरशिप, वेल दिस इज अ होलिस्टिक प्रोग्राम व्हिच आई एम ऑफरिंग टू यू, व्हिच इज अवेलेबल एट द प्राइस ऑफ 6,000. ऑफ कोर्स यहाँ पे डिस्काउंट भी है, बिकॉज इफ यू जॉइन द प्रोग्राम आपको इनिशियल स्टार्टिंग डिस्काउंट भी मिलता है. 180089030343. दिस इज द नंबर. प्लीज गिव अ कॉल ऑन दिस नंबर एंड गेट इन टच विद अस. आई विल सी यू वेरी सून. एंड ऑल्सो आई हैव अ टेलीग्राम ग्रुप. द नेम ऑफ माई टेलीग्राम ग्रुप मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूं, अपस्केल विद कुबेर सर. ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको प्लीज ज्वाइन कर लीजिए. इंपॉर्टेंट अपडेट्स एथिक्स, एसए और जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड आपको यहां पे मिलती रहेगी. स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स. थैंक यू.